नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और ऑस्ट्रेलिया को हराना है सेमीफाइनल में। हम तैयार हैं और साथ ही हमारे एक्सपर्ट भी हर गुरु मंत्र के साथ। हरभजन सिंह और मोहम्मद अजहरुद्दीन, स्वागत है आपको। बात करेंगे हम क्या करना हो फाइनल में पटकने के लिए, कुचलने के लिए। लेकिन इससे पहले देखते हैं कि टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की तैयारी कैसी है इस सेमीफाइनल मुकाबले को लेकर। कप्तानों का, खिलाड़ियों का क्या कहना है। We are here on a mission, and the mission is to win the World Cup. So when we finished the Tri Series, I know it was 2.5 months then. None of the guys, thought about going back, or we were right there, and we just wanted to create a history here. सुना ना आपने, टीम की नजर कप पर कुछ उसी तरह है जिस तरह महाभारत में अर्जुन की नजर मछली की आंख पर थी। भारत के रणबांकुरों को पता है कि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया का पत्ता साफ करने का क्या मजा है। There couldn't be a better time for us. It's an opportunity for us to do justice to the way we played so far in Australia, and we haven't had the results, but we played the right kind of cricket, and the difference now is especially how our bowling attack has come into play in this World Cup, and taking 70 wickets in 7 games. That's probably been the difference, and if we can continue to do that, we have a great chance come game day. आज से करीब 1.5 महीने पहले दुनिया जब ताने मार रही थी, तब भी टीम को पता था कि वो क्या कर रही है। अब तो हर मोर्चा चाक चौबंद है और टीम पूरी तरह दबंग। देखिए, हम लोग कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। जो भी पिछले 4 महीने से हम यहाँ पर है, तो जब हम टेस्ट सीरीज हारे, ट्राई सीरीज क्वालिफाई नहीं किए फाइनल के लिए, तो हम चाहते थे, सभी लड़के चाहते थे कि हमको ये वर्ल्ड कप में चेंज करना है, एटीट्यूड चेंज करना है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी चाहे जितना उछल लें, उनके कप्तान को भी पता है कि हिंदुस्तान के हल्ला बोल से बचना इतना आसान नहीं है। I said at the start of this tournament that I thought India were going to be one of the toughest teams to beat, and my main reason for that was because they've been in the conditions for so long. They've played so much cricket in Australia. They've worked out how to take wickets. They've worked out how to score runs, and they've shown that through this tournament. I think MS Dhoni deserves a lot of credit for the way he's captained his team, especially after being defeated in the Test series and the Tri series, to be able to turn things around. And they're obviously at the top of their game at the moment. So we're prepared for that. We know we're playing against a very good team who obviously won the last World Cup. We look forward to that challenge. जी, पिच और परिस्थितियों से पूरी तरह वाकिफ है टीम इंडिया। उसे पता है कि वार कहां करना है, किस तरह करना है। वैसे भी उनके पास वार्नर है तो हमारे पास शिखर है, उनके पास फिंच है तो हमारे पास वर्ल्ड रिकॉर्डधारी रोहित है, उनके पास स्टीव स्मिथ है तो हमारे पास वनडे के ब्रैडमैन विराट है, उनके पास मैक्सवेल है तो हमारे पास पूरे रंग में चल रही रैना है, उनके पास स्टार्क है तो हमारे पास शमी है। बोनस में हमारे पास स्पिन आक्रमण है जो कंगारुओं को डरा रहा है। Every team has some kind of weakness, and Australia has got some as well. They have definitely struggled against some quality fast bowling. If you look at the game against New Zealand, they got all out for 150. Even the other night in Adelaide, against Pakistan, they seem to be in a little bit of trouble. But overall, they're a good batting unit. There's no doubt about it. But again, we are a different bowling attack. We have to stick to our strengths. So we have our ways to come and counter them. Whether it will be spin bowling or fast bowling, you will see that tomorrow. दोनों टीमों की सोच यही है और साथ भी इस मैच में हर तरह का रंग दिखेगा और रोमांच ऐसा कि रोंगटे खड़ा कर देगा। तो तैयार रहिए दो महारथियों के महामुकाबले का मजा लेने के लिए। विक्रांत गुप्ता, सिडनी, आज तक। तो चलिए, हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हरभजन सिंह और मोहम्मद अजहरुद्दीन पहुंचे हुए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल मुकाबला, हाई वोल्टेज मुकाबला। आपको बता दें कि आज सुबह मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल के आए हैं, 2020 का मुकाबला पंजाब की कप्तानी करके। लेकिन इसके बावजूद भी आप अगर हरभजन का चेहरा देखेंगे तो बिल्कुल फ्रेश है, क्योंकि कल सेमीफाइनल मुकाबला खेलना है और हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हरभजन, लगता है टीम इंडिया तैयार है इस सेमीफाइनल के लिए? जी देखिए, तैयार होना चाहिए, क्योंकि
पिछले मैचेस जो खेले हैं अच्छे खेले हैं, बट ये मत भूलिए कि आपने पिछले जो 4 गेम जीते हैं वो यूएई, आयरलैंड, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़, ये 4 गेम हैं और चारों टीमें कोई ऐसी बड़ी टीमें नहीं हैं जिनको आपने हराया है। कॉन्फिडेंस आपको ज़रूर आया होगा, 4 मैचेस आपने लगातार जीते हैं, बट टुमारो विल बी ए बिग गेम। पहली बार ऐसा इस टूर्नामेंट में इंडिया अपने बराबर की टीम के साथ खेलेगी, तो लेट्स सी अपनी जब बराबर की टीम आती है, 2 शेर जब टकराते हैं तो कौन ज़ोर से दहाड़ता है। और आई एम श्योर अगर हम अपने जो स्ट्रेंथ के ऊपर क्रिकेट खेलेंगे तो फिर हम और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। क्या है और स्ट्रेंथ हमारी देखिए स्ट्रेंथ जो है वो बैटिंग है, मैं आज भी मानता हूँ, क्योंकि हमने 7 में 70 विकेट लेने के बाद भी उसके ऊपर भी मैं आता हूँ। 7 के ऊपर 70 विकेट हमने लिए इसलिए कि जब आप 300 रन बना देते हो तो दूसरी टीम यहाँ तो ऑल आउट हो जाती है या वो चेज़ कर जाती है। तो जब 300 रन बनाओगे, दूसरी टीम चेज़ करने जाओगे, 10 विकेट तो लोगे ही आप। तो उसमें आपने कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं कर दिया कि हंगामा हो गया। तो ऐसा नहीं किया कि आपने पहले बॉलिंग करते हुए दूसरी टीम को 150 पे आउट कर दिया हो। तो तब मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है। तो मेरे ख्याल से ये कल का मैच जो है वो बहुत बड़ा गेम है, क्योंकि वी विल बी टेस्टेड टुमारो। बैटिंग स्ट्रेंथ है हमारी, बिल्कुल बैटिंग स्ट्रेंथ है और बैटिंग ने 300 रन बनाए हैं, इसीलिए हमारे बॉलर जो हैं वो अच्छा कर पाए हैं। पर खुदा ना खास्ता अगर कल हमारी पहले बॉलिंग आती फिर आई वुड लाइक टू सी कि कल 10 विकेट ले पाते हैं या नहीं फर्स्ट इनिंग में। क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं, हमने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, हमने बड़ी अच्छी बैटिंग की है, हमने बैटिंग बॉलिंग अच्छी की है, पर हमारा जो मुकाबला हुआ है वो हमारे से लो जो टीमें हैं उनसे हुआ है। अगर टोटली अगर देखा जाए ये वर्ल्ड कप जो 8 टीमों का था, जो मेन 8 टीमें क्वार्टर फाइनल्स में आई थी और उसमें से बांग्लादेश ने बहुत अच्छा खेल लिया, वो आ गए। बट बांग्लादेश के साथ अगर इंडिया या कोई और भी बड़ी टीम खेलेगी 10 बार तो आई थिंक 9:30 पौने 10 टाइम वो बड़ी टीमें जीतेंगी। तो ये कल का बड़ा मुकाबला है, बड़ी टीमें हैं दोनों। वी नीड टू स्टिक टू व्हाट वी बिन डूइंग, व्हाट मेड अस सक्सेसफुल इन ऑस्ट्रेलिया, उसके ऊपर काम करना चाहिए। एंड आई एम श्योर जो प्रेशर है वो ज़्यादा रहने वाला है ये गेमों पे भी, क्योंकि ये गेम ईजी नहीं होने वाला है। आई एम श्योर जो प्रेशर है वो बेटर हैंडल करेंगे तो हम विल हैव अ गुड चांस टू विन। बड़ा एक अलग ही रूप आज हरभजन सिंह का देखने को मिल रहा है सेमीफाइनल से ठीक पहले। आप देख रहे हैं किस तरीके से तेवर बदले हुए हैं, सीरियस हैं, बातें कैसी कर रहे हैं। आज रोज जोश जस्ट अलग अलग रूप देखा है, लेकिन खिलाड़ी एक सेमीफाइनल से पहले आप देख रहे हैं कि किस टेम्परामेंट में है। जोन में खुद हरभजन सिंह भी हैं और आज जो बातें की हैं शायद पहले ऐसी बातें नहीं की हरभजन सिंह ने। और अजहर भाई एक बात लगातार हो रही है जो बहुत एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि टॉस बड़ा क्रूशियल होगा, जो टॉस जीतेगा उसके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्या सिडनी में भी ऐसा ही होगा? अगर भारत बाई चांस टॉस हार जाता है तो उसके जीतने के चांसेस क्या बहुत कम हो जाते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। टॉस हारने से जीतने के चांसेस कम होना या ज़्यादा होना, उससे ज़्यादा उतना फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। बट लेकिन जो भी टीम टॉस जीतेगी मैं समझता हूँ कि वो बैटिंग ही करेगी, क्योंकि जो टीम जब सेकंड बैटिंग करती है तो ज़्यादा प्रेशर में रहती है, क्योंकि एक टीम ऑलरेडी स्कोर बोर्ड पे स्कोर बना चुकी है तो दूसरी टीम को बनाना पड़ता है। तो जब पहली टीम जब बैटिंग करती है तो उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता, तो टाइम लेके खेल सकते हैं। बट लेकिन जो दूसरी टीम है कहीं अगर 350 का रन बनाना अगर दूसरी टीम को आता है तो उनको बिल्कुल 5 से 5.5 का एवरेज तो लेके ही चलना पड़ता है। जहाँ पे एवरेज रन का ब्रेक होता है वहाँ पे ज़्यादा 6, 7, 8, 9 का भी एवरेज चले जाता। तो मैं नहीं समझता हूँ कि उतना ज़्यादा यहाँ पे टॉस क्रूशल होगा। बट लेकिन जो भी टीम, जैसा कि आपने जो ट्रेंड देखा है, जो भी टीम जब भी पहले टॉस जीतती है वो मोस्टली बैटिंग ही कर रही है। बिल्कुल। और अजहर भाई एक जो ऑस्ट्रेलिया की कमजोरी लगातार बात हो रही है कि पहले 3 गेंदबाजों में चैलेंज शुरू नहीं होगा, उनका चैलेंज शुरू होगा 4थे 5वें गेंदबाज से। स्पिनर की जब बात आएगी तब शुरू होगा। तो क्या वहां पर टीम इंडिया को उनका अटैक करना है कि उसका फायदा उठाए? जरूर, डेफिनेटली उनका फायदा डेफिनेटली उठाना पड़ेगा। उनके जो 3 जो मेन बॉलर है तो मेन बॉलर है। मैं समझता हूँ जहाँ पे मैक्सवेल जब बॉलिंग करें वहाँ पे बिल्कुल आपको उनको फायदा उठाना पड़ेगा। मैंने समझता हूँ मैक्सवेल उतने अच्छे बॉलर है, बट लेकिन डालते हैं, बट उनकी किस्मत अच्छी कि कल इवन पाकिस्तान के भी मैच में आप देखिए 2 विकेट मिले उनके, बिल्कुल लॉन्ग हॉप पे मिल गए विकेट और उसमें है। तो मैं उतने ज़्यादा कोई उनसे टेंशन नहीं है। बट लेकिन उनको जो उनके जो सेकंड स्ट्रिंग बॉलर है उनका पूरा एडवांटेज लेना पड़ेगा अगर इंडिया को 300 350 रन बनाना होगा। अगर कहीं हम विकेट जल्दी हमारे गिरते हैं तो हम बिल्कुल प्रेशर में आ जाते हैं। बिल्कुल। चलिए हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ, लेकिन वाकई में एक अलग तेवर में दिख रहे हैं हरभजन सिंह और मोहम्मद अजहरुद्दीन। आज हरभजन बहुत सीरियस और पूरी तैयारियां आप देख रहे हैं किस तरीके से फोकस तरीके से आज यहाँ पर तैयारियां चल रही है। चलते हैं हमारे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ हैं। वो ड्रेसिंग रूम में उन्होंने खास कुछ तैयारियां की हैं और वो ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल है और क्या तैयारियां हैं वो आपके सामने हम लेकर आते हैं। निशांत। देखिए समीप, एक बड़ी पुरानी लाइन है, कहां पड़े हैं चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। जो आंकड़े बताते हैं ना समीप, अजीब अजीब आंकड़े लोग लेके आते हैं। स्टैटिस्टिशियन बताते हैं कि 35 साल में सिर्फ 1 मैच जीते। मैं बात करता हूं नॉकआउट स्टेजेस की। अब देखिए यहां पर पूरा ड्रेसिंग रूम तैयार है,
हमने पूरी तैयारी कर रखी है। अब नॉकआउट स्टेजेस की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का 2 बार मुकाबला हुआ है, एक बार क्वार्टर फाइनल में जहां पे हमने चित किया, एक बार फाइनल में जहां पर उन्होंने हमें चित किया, तो मामला बराबर का है। अब बात करते हैं यहां इस बोर्ड की। यह हमारा बोर्ड सज चुका है और इस बोर्ड में ये 2 माइकल क्लार्क और महेंद्र सिंह धोनी, इनके रिकॉर्ड्स की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया की तारीफ यह है समीप की 7 सेमीफाइनल है, ये 7वां, 6 में से कभी नहीं हारे हैं। महेंद्र सिंह धोनी की अगर बात की जाए तो अगर ये इनका 7वां है तो 7 इनका लकी नंबर है। तो देखिए, मन को बहलाने के लिए बहुत सारी चीजें, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। इन दोनों के ठीक राइट साइड में 2 बड़े इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, 2 पहलवान। क्यों? मोहम्मद शमी, मैं थोड़ा सा इसको यहां पे इधर लेके आऊंगा समीप। मोहम्मद शमी ने 17 विकेट लिए हैं और मिशेल स्टार्क ने 18 विकेट लिए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है, डॉट बॉल परसेंटेज मोहम्मद शमी का है 68%, सबसे हाईएस्ट, और इनका है 69%। तो ये 2 बड़े महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। एक चीज ये, और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आप ना भूलें, एक आपके पास आने से पहले मोहम्मद शमी की अगर हम बात करें, इसके अलावा हम लोग बात करें उमेश यादव और मोहित शर्मा की, 70 में से 42 विकेट इस पेस ट्रियो ने लिए हैं। तो आप हमें जरा तगड़ी विकेट दे दें तो भी हम निपट लेंगे, और आप हमें स्पिन दे दें तब तो गेम हमारा ही है। निशांत, एक एक करके जो आपने चीजें बताई वो मैंने गिनी, आपने कुल 5 बड़ी अहम चीजें बताई हैं। ऑस्ट्रेलिया का टेम्परामेंट का इसी से पता चलता है कि सेमीफाइनल कभी हारी नहीं है, और सिडनी में रिकॉर्ड भी भारत से बहुत ज्यादा अच्छा है। और इंडिया की तरफ जो एडवांटेज दिखता है वो है कि इस वर्ल्ड कप में अब तक का प्रदर्शन, जो आपने कहा है कि ज्यादा मत उसके अंदर झांकिए, उसमें कुछ खास है नहीं। और दूसरी चीज ये, जो पिच जो है वो टीम इंडिया को बहुत फेवर कर रही है। आपने कहा टीम इंडिया की स्ट्रेंथ बैटिंग है, तो क्या इस पिच में हम उनके बॉलर्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? मिचेल स्टार्क जो कि इतने अच्छे फॉर्म में है, मिचेल जॉनसन थोड़ा इधर उधर वेवर्ड है, जोश हेजलवुड, तो क्या ये 2, मिचेल स्टार्क और हेजलवुड, सबसे बड़ी चुनौती हमारे? जो सबसे बड़ी बात इंडिया की फेवर में है वो है विकेट। अगर सफेद दिख रही है, आज हटाया उसको, इंडिया से भी ज्यादा इंडियन विकेट दिख रही है जी, वो अगर वैसी विकेट है, सफ़ेद विकेट है, तो फिर इंडिया को डेफिनेटली एडवांटेज है। और चाहे वहाँ पे टॉस जीतो या हारो, इंडिया की बैटिंग इतनी अच्छी है, वो किसी भी सिचुएशन से मैच को निकाल सकते हैं, बिकॉज दे हैव गॉट द टेम्परामेंट ऑल्सो। दे डोंट प्ले हाई रिस्क शॉट्स। जो अपने बैट्समैन मैंने देखे हैं, अजिंक्य रहाणे या विराट कोहली या रोहित शर्मा, ये रिस्क फ्री क्रिकेट खेलते हैं। और वहीं ऑस्ट्रेलियन जो हैं वो काफ़ी रिस्क फ्री क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वो काफ़ी रिस्क लेते हैं। अटैकिंग, एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। एग्रेसिव क्रिकेट खेलना एक अलग बात होता है। एग्रेसिव विराट कोहली भी बहुत खेलते हैं, पर वो शॉट जो सिलेक्शन है बहुत अच्छा है। वहीं डेविड वार्नर जो हैं वो काफ़ी रिस्क लेते हैं, मैक्सवेल बहुत रिस्क लेते हैं। तो इसलिए मैं इंडिया को थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा बेटर आंकता हूँ बैटिंग में, क्योंकि हमारी बैटिंग की स्ट्रेंथ ये है कि हम रिस्क फ्री क्रिकेट खेलते हैं और रन तेज़ी से बनाते हैं, वो भी ज़्यादा रिस्क ना लिए हुए। वहीं ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा रिस्क लेती है और रन जो है वो कम बनाती है। कितने फीसदी आप चांसेस देंगे? आप कहेंगे 50-50 या इंडिया फेवरेट? किस तरीके से आप इस मैच को तोलेंगे? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि जैसा कि जो हमारा जो परफॉर्मेंस हुआ, जो ऑस्ट्रेलिया जो मैचेस खेले अपने जितना भी टूर पे हुआ और जो वनडे गेम भी खेले और प्रैक्टिस मैच भी खेले, तो मैं यहाँ पे स्लाइटली एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया को मैं लगता है, बट ये जरूर दूंगा, क्योंकि उन्होंने जो भारत के साथ बहुत अच्छा खेला। जो बातचीत कर रहे थोड़ा नर्वस सी लग रही है आज। माइकल क्लार्क भी कहते हैं उनको हराना आसान नहीं होगा, कंडीशन समझ चुके हैं। तो आपको लगता है ऑस्ट्रेलिया, ये तो कोई भी ऐसा प्लेयर बोलेगा नहीं कि हम हरा देंगे सकता है, हम बोले बस यही बोल सकते हैं कि डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि एक मेंटल स्ट्रेटेजी होती है कि हर बात जो इंटरव्यू में आप एकदम भी अगर आप बोल देंगे तो ऐसा लगा कि आप बहुत बड़े प्लेयर हो गए, अगर कल कुछ उल्टा सीधा होता है तो वो अच्छा नहीं। बिल्कुल। तो चलिए, फिलहाल इस महामुकाबले पर, सिडनी के संग्राम पर हमारी पूरी कवरेज और हमारी पूरी नजर लगातार बनी हुई है। लगातार हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे, उनसे हम बातचीत करते रहेंगे। हरभजन अजहर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए आज तक।